Hello students, I am Dr. Prasad Dumde, your chemistry teacher from Imperial Academy of Science वर्धा। अभी तक के सेशंस में हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स इस चैप्टर में बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। Where the D block elements are situated within S block and P block, they are also called as transition elements. Why they are also called as transition element, that we also have been discussed. And we have also discussed about certain properties of D block elements. Which properties we discussed? First, atomic or ionic size. Atomic or ionic size. Second property what we discussed is about oxidation states. Third property what we have discussed is ionization. Enthalpy. In the fourth property we discussed about metallic characters. Then we discussed about magnetic properties. After magnetic property, we have also given a quick look on colored compounds which are formed by transition elements. In atomic or ionic size, what we discussed, as we move from left to right in a period, atomic size decreases because effective nuclear charge increases. Here in case of d orbital elements or d block elements or transition state elements, what we can say, electrons are added to the penultimate shell, but although screening effect increase होता है, उसके वजह से भी atomic size decrease होती है। तो left to right in a period यानी स्कैंडियम से लेकर जिंक तक atomic size 3D सीरीज में shrink होते हुए दिखेगी या फिर atomic size decrease होते हुए दिखेगी। Oxidation state, we also discussed that they have variable oxidation state. स्कैंडियम में +2 से लेके +3 तक, और जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज और जिंक तक, we will find that there are several oxidation states which are shown by the transition state elements, ranging most preferably from +2 to +7 for 3D series. It is for 3D series, and we know for 4D and 5D series transition element can extend their oxidation state up to +8, what we can observe in osmium, that we have observed in osmium. Ionization enthalpy, what we can observe or discuss about ionization enthalpy, that the first ionization enthalpy is lower than the second ionization enthalpy. Second ionization enthalpy is lower than the third ionization enthalpy. It means what? Successive ionization enthalpies increases. Why? Because जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर से निकलते जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट उनकी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज. As effective nuclear charge will increase, the pull by the nucleus towards the outermost electron will increase. That will decrease the atomic size. Okay. Then what we can say, as force of attraction between the nucleus and electron is increasing in the successive enthalpies, what we can say, ionization enthalpy successively increases. It will be more for first ionization enthalpy, it will be greater for second, and it will be greater than third. In the third ionization enthalpy, it will be greater value. Okay. Then metallic characters. In metallic character, what we discuss about, they form strong metallic covalent bond. They can provide empty d orbitals or vacant d orbitals. They can form two types of bonds, ionic bond in lower oxidation state and covalent bond in higher oxidation states.
They shows all the physical properties of metal: luster, hardness, rigidness, good conductors of electricity. Magnetic properties also we have been discussed. So these all properties metallic character में हमने डिस्कस किया है. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में in case of magnetic property we identify three types of substance: paramagnetic, diamagnetic and ferromagnetic. The paramagnetic substances are those which have unpaired electrons in their outermost shell or outermost orbitals. They are being attracted by the magnetic field, or they attract towards the magnetic field. Diamagnetic, which have all paired electrons, I said which have all paired electrons in their outermost shell, are generally diamagnetic. हम एटॉमिक स्पीसीज के बारे में ही बात नहीं करेंगे, आयोनिक स्पीसीज के भी बारे में बात करेंगे. यानी एक ही मेटल के अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक रहेगा, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक हो सकता है. जैसे Zn+2 जिसमें 3d10 ये अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है दैट विल बी डायमैग्नेटिक, राइट. पर उसी जगह पे अगर हम बात करते हैं कोबाल्ट 2+, इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो वो रहेगा पैरामैग्नेटिक. तो जिनके आउटर मोस्ट शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो रहेगा पैरामैग्नेटिक. जिनके आउटर मोस्ट शेल में सभी के सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो स्पीशीज रहेंगे डायमैग्नेटिक. और ऐसे कोई स्पीशीज या फिर ऐसे कोई एलिमेंट्स जिनमें अगर हम मैग्नेटिक इफेक्ट को या फिर मैग्नेटिक फोर्स को या फिर मैग्नेटिक फील्ड को उसको एक्सपोज करते हैं तो उसमें परमानेंट मैग्नेटिज्म हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. जैसे आयरन, कोबाल्ट और निकेल, ये तीन एलिमेंट हम फेरोमैग्नेटिक कैटेगरी में भी डाल सकते हैं. सो वी हैव इन द केस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी. और इसके लिए हमने एक एग्जांपल भी लिया था कि हाउ यू कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द एलिमेंट. सो mu is equal to under root of n in bracket n+2 for magneton. This was the formula what we have used. हमने ये भी डिस्कस किया था कि 3D सीरीज में स्पिन ओनली एंगुलर मोमेंटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटिक मोमेंट mu, but as we move to the 4D series and 5D series the orbital becomes more diffused. So angular momentum of the orbital means orbital angular momentum is also considered while calculating the magnetic moment of the element. उसके बाद में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये इस तरीके से आएगा. सॉरी, I have given this formula for magnetic property. Okay. Now colored compound में हमने कल या फिर लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स जो है वो जनरली कलरफुल कंपाउंड नहीं देते. दे जनरली शोज कलरलेस कंपाउंड और व्हाइटिश और ग्रेइश व्हाइट कलर कंपाउंड और यू कैन से सिल्वरी व्हाइट कलर कंपाउंड. बट दीज ऑल कलर कंपाउंड्स आर टर्न टू बी कलरलेस कंपाउंड. वो दिखने में सफेद रंग के दिखते हैं, सिल्वरी या फिर ग्रेइश व्हाइट दिखते हैं, मगर हम उसको टर्न करेंगे कि दे आर कलरलेस कंपाउंड. और हम देखते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट यानी डी ब्लॉक एलिमेंट वाले जो है वो बहुत ज्यादा कलरफुल कंपाउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो ऐसा क्यों होता है? उसके लिए मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था और आपको बोला था कि हम अगले सेशन में उसके डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे करके, बराबर. तो वी आर नाउ फोकसिंग ऑन हाउ डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स प्रोड्यूस कलरफुल कंपाउंड, बाय विच फिनोमेनन दे प्रोड्यूसेस कलरफुल compounds. In the transition elements, the force of attraction of the d orbital electron is not so much greater. देखिए कोई एक S नाम का सब्सटेंस है, उस S नाम के सब्सटेंस के ऊपर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ hν की लाइट अगर आती है तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है और एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वेवलेंथ को इमिट करता है. जो उसने ले ली उसको बोलेंगे हम एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ. ओके. और जो उसने छोड़ दी यानी एमिटेड जो रहेगी
उसे बोलेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री वेवलेंथ। अब क्या होता है, अगर हमने S और P ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अगर बात करते हैं हम, S और P ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस को काफी फर्मली अट्रैक्ट रहते हैं। मींस व्हाट, द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच बिलोंग्स टू S ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप, P ऑर्बिटल डम्बेल शेप, इनका न्यूक्लियस की तरफ ओरिएंटेशन, न्यूक्लियस के प्रति आकर्षण या फिर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहता है। इसलिए अगर बाहर से कोई एनर्जी आती है तो वो एकाएक एक्साइट नहीं होते। मगर डी ऑर्बिटल, इसके खुद में 5 ओरिएंटेशन है। डी ऑर्बिटल के एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ऐसे 5 ओरिएंटेशन है। इसका डिफ्यूजन पावर ज्यादा है, दे आर मोर डिफ्यूज्ड। ये डिफ्यूज होने की वजह से अगर डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई एनर्जी आती है, आई रिपीट, अगर डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई एनर्जी आती है, पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी अगर वो एब्जॉर्ब करता है, तो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके, डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से लेके एक्साइटेड स्टेट में, आई रिपीट, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। मींस व्हाट, d orbital electrons are liable to undergo excitation very easily as compared to s block and p block electrons। अब होता क्या है देखिए, यहां पे जो d ऑर्बिटल है, ये समझ लीजिए किसी एलिमेंट का d ऑर्बिटल है। इस डी ऑर्बिटल में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूं, आई एम नॉट गिविंग एनी पर्टिकुलर एग्जांपल, आई एम ओनली डिस्कसिंग द हाइपोथेटिकल सिचुएशन। सपोज देयर इज अ स्पीशीज हैविंग वन अनपेड इलेक्ट्रॉन इन इट्स डी ऑर्बिटल, एंड इफ सपोज दिस स्पीशीज एब्सॉर्ब पर्टिकुलर h nu अमाउंट ऑफ एनर्जी और h nu अमाउंट ऑफ वेवलेंथ की एनर्जी अगर उसने एब्सॉर्ब कर ली, ओके, सो व्हाट हैपेंस, यूजुअली दीज डी ऑर्बिटल्स, 5 डी ऑर्बिटल्स आर degenerate orbitals, means having similar energy level, same energy level है, पर जैसे ही एनर्जी को वेवलेंथ एब्जॉर्ब करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ, दे एब्जॉर्ब एनर्जी, तो ये जो सिचुएशन है वो थोड़ी अलग हो जाती है। दिस 5d ऑर्बिटल, these 5d orbitals splits into 2 sets, one is of 3 and one is of 2 depending upon the nature of the complex। ये देखिए कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा, ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का डी ऑर्बिटल वाला जो ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स कौन सा बनाएगा, ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, इस तरीके के ज्योमेट्री के हिसाब से उनका स्प्लिटिंग होता है। मैं एग्जांपल के तहत बताता हूं कि 2 सेट में वो स्प्लिट होगा, हमेशा 2 ही सेट में वो स्प्लिट होगा। 5d degenerate orbital having similar energy splits into one set called as T2G, another set called as EG, one set having name T2G, another set having name EG, okay। 3 ऑर्बिटल, 3 सब ऑर्बिटल अलग हो जाते हैं और 2 सब ऑर्बिटल एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर अलग हो जाते हैं। अब समझ लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन, ये अगर ग्राउंड स्टेट में है तो यहां पे रहेगा, EG अगर ग्राउंड स्टेट में है, मैं बोल रहा हूं कि EG अगर ग्राउंड स्टेट में है तो यहां पे रहेगा। ये एनर्जी इसने एब्सॉर्ब करी और इस एनर्जी की वजह से ये एक्साइट हो गई। ये कौन सी स्टेट थी इसकी, ग्राउंड स्टेट। ये ग्राउंड स्टेट से कहां जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा।
और ये एनर्जी को एमिट करेगा और एक्साइटेड स्टेट से फिर से ग्राउंड स्टेट में आएगा। व्हेन इट विल कम फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, इट विल आल्सो एमिट a particular hν, a particular wavelength of light। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट इसने एब्जॉर्ब करी, ग्राउंड स्टेट से डीजनरेशन हो गया, डीजनरेट ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग हो गया T2G और EG में, ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट चला गया, ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट चला गया, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट जब वो वापस आएगा तो वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी को फिर से लिबरेट करेगा वेवलेंथ के फॉर्म में। दैट पर्टिकुलर वेवलेंथ विल, if that particular wavelength lies in visible spectrum, if that particular wavelength lies in within the visible spectrum, that is 400 nanometer to 800 nanometer of wavelength, it will emit a particular amount of particular type of color, it will emit a particular type of color that is called as the complementary color। जो एब्जॉर्ब करा वो छोड़ो, मगर एब्जॉर्ब करने के बाद में जो एमिट करा, एमिट करने वाला जो रहेगा कलर उसको बोलेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो उस कंपाउंड का हमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखेगा। यानी जो कलरफुल कंपाउंड रहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट के, जो कलरफुल कंपाउंड्स मिलते हैं अपने को ट्रांजिशन एलिमेंट के, दैट इज बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हिच इज एमिटेड बाय द सेंट्रल मेटल एटम प्रोड्यूस प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स और प्रेजेंट इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और प्रेजेंट इन द डी ब्लॉक एलिमेंट कंपाउंड। यानी ट्रांजिशन एलिमेंट या फिर डी ब्लॉक वाले ने जो कंपाउंड बनाया है उसने जो कलर एमिट किया है वो कलर हमें उस कंपाउंड का दिखता है। यहां तक क्लियर हो गया? यहां पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ डी ऑर्बिटल से, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ डी ऑर्बिटल से और इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके गया भी डी ऑर्बिटल से। यानी इलेक्ट्रॉन इज ट्रांजिटिंग फ्रॉम डी ऑर्बिटल टू डी ऑर्बिटल, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डी transition, is called as dd transition। Why it is called as dd transition? Because d orbital electron from ground state reaches to d orbital electron in the excited state or excitation state, right? As there is a movement of electron from d orbital to d orbital itself, it is called as dd transition। ये कहां पे हो रहा है? विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, विजिबल बैंड में हो रहा है, इसलिए हमें कलर मिल रहा है। एब्जॉर्ब किया हुआ अलग रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर अलग रहेगा। एब्जॉर्ब करा हुआ कलर हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री कलर को जन्म देता है, ठीक है, और कलर हमें कंपाउंड का मिलता है वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर की वजह से मिलता है। अब हमें देखना है, वी हैव बीन आल्सो स्टेटेड द एग्जांपल ऑफ कोबाल्ट। हमने कल देखा था कि कोबाल्ट क्लोराइड, कोबाल्ट क्लोराइड को अगर हमने पानी में डाल दिया, कोबाल्ट क्लोराइड को हमने पानी में डाल दिया तो हमें कॉम्प्लेक्स मिला था कोबाल्ट हेक्साहाइड्रेट डाइपॉजिटिव। ये एक कॉम्प्लेक्स मिला था कोबाल्ट हेक्साहाइड्रेट डाइपॉजिटिव। इसका जो ज्योमेट्री था, इसका जो शेप था वो है ऑक्टाहेड्रल। कोबाल्ट हेक्साहाइड्रेट का जो शेप रहेगा दैट विल बी ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 6। ये हम एकदम अलग से डी ब्लॉक खत्म होने के बाद में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक्वा यानी वाटर मॉलिक्यूल इज वर्किंग एज लिगैंड बिकॉज ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द ऑक्सीजन। इन द प्रीवियस सेशन सो फार आई हैव डिस्कस्ड अबाउट कि ट्रांजिशन एलिमेंट वर्क्स एज अ सेंट्रल मेटल एटम और वो अपने डी ऑर्बिटल को वेकेंट कर सकता है और बहुत सारे लोन पेयर्स अपने आप में ले सकता है। इट अंडरगोज सेवरल हाइब्रिडाइजेशन स्टेट्स और हाइब्रिडाइजेशन स्टेट की वजह से वो अलग अलग प्रकार के ज्योमेट्री के लेटाइस या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। अब जरा ध्यान दीजिए, हमने क्या बोला कि अगर कोबाल्ट क्लोराइड को पानी में डाल दिया तो ये कॉम्प्लेक्स बना ऑक्टाहेड्रल, और अगर हमने उस कोबाल्ट क्लोराइड के सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेटेड HCl में डाल दिया, यानी ये कॉम्प्लेक्स अगर हमने
HCl में डाल दिया, कुछ इस तरीके से ये रिएक्शन प्रोड्यूस होगी या फिर प्रोसीड होगी। तो वी विल बी ऑब्टेनिंग अब यहां पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया एंड द ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। इन दोनों केसेस में देखिए ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री चेंज हो गई, ये था पहले पिंक कलर का और ये होगा डीप ब्लू कलर। अब कोबाल्ट में ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कोबाल्ट में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोबाल्ट अंडरगोज dd ट्रांजिशन। कोबाल्ट जो है वो dd ट्रांजिशन में जाता है। अब कोबाल्ट dd ट्रांजिशन में कैसे जाता है? कोबाल्ट, इसका एटॉमिक नंबर आयरन कोबाल्ट 26 27, ओके। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा बेटा? आर्गन 18 हो गए, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 and 27. This will be its electronic configuration. अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी है तो उसके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा? यहां से 2 निकल रहेंगे इलेक्ट्रॉन 4s0। तो उस केस में भी अगर यहां पे देखते हो आप 1, 2 और 3 कुल मिला के 1, 2, 3 क्या है? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। क्या बेटा? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। सो कोबाल्ट के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोबाल्ट इन इट्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट will have 25 electrons. According to 25 electrons, its electronic configuration like this. Okay, it will have 3 unpaired electrons. So these 3 unpaired electrons undergoes dd transition. ये कॉम्प्लेक्स भी बना जाए है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसका कलर है पिंक और टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में है डीप ब्लू कलर। ये कलरफुल कंपाउंड क्यों बना रहा है? क्योंकि कोबाल्ट dd ट्रांजिशन दिखाता है। वैसे ही बहुत सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलरफुल कंपाउंड क्यों बना सकते हैं? क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में एक पर्टिकुलर फिनोमेना या फिर प्रोसेस हो सकती है बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। आई रिपीट, बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स दे प्रोड्यूसेस dd ट्रांजिशन। दिस dd ट्रांजिशन प्रोड्यूसेस कलरफुल कंपाउंड्स। ये क्लियर हो गया? बराबर ना? अब हमें देखना है कि अगर किसी स्पीशीज में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर किसी स्पीशीज में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या होगा? इफ एनी स्पीशीज डज नॉट कंटेन अनपेड इलेक्ट्रॉन, दैट स्पीशीज यूजुअली प्रोड्यूसेस कलरलेस कंपाउंड्स। ओके, कलरलेस कंपाउंड्स प्रोड्यूस करेगा, यानी dd ट्रांजिशन के लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत हमेशा रहेगी। देयर इज ऑलवेज नेसेसिटी ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स फॉर dd ट्रांजिशन। Because of dd transition only the transition element produces colorful compounds. If any species or if any oxidation state of any transition element which does not have d electrons or does not have unpaired d electrons will produce colorless compound. But still there are certain compounds like this was about dd transition. I am giving examples of some compounds. KMnO4, potassium permanganate, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये कंपाउंड जो है इनके ऑक्सीडेशन स्टेट में, इनके पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में सेंट्रल मेटल एटम जो है मैंगनीज और क्रोमियम, इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट डज नॉट परमिट एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन in the orbital. Still these compounds are colorful compounds. It is purple in color, it is orange in color.
व्हाई इट इज हैपनिंग सो, इसके लिए हमें कुछ आयंस के बारे में डिस्कस करना पड़ता है। ओके, तो ये आयंस के बारे में डिस्कशन कैसा रहेगा, क्या रहेगा, तो अभी अगर हम ले लेंगे तो थोड़ा सा सेशन भी डिले हो जाएगा। हम अगले सेशन में जहां तक हो सके अगले सेशन में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो आई होप कि डीडी ट्रांजिशन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में एक बहुत अच्छी फिनोमिनन हमें आज कल या फिर नेक्स्ट सेशन में फिर से डिस्कस करना है, दैट इज चार्ज ट्रांसफर। एक्सक्यूज मी। Okay, definitely we will discuss the charge transfer. In this session, what we discussed, the transition. In this session, we discuss about DD transition. We discuss about several properties, how DD transition takes place. Okay, हमने एक एग्जांपल भी लिया, ठीक है, ज्योमेट्रिकल शेप के हिसाब से कैसे कलर चेंज होते हैं वो भी देखा। अगले सेशन में हमें देखना है द फिनोमेना अबाउट चार्ज ट्रांसफर। फिनोमेना अबाउट चार्ज ट्रांसफर। नाउ चार्ज ट्रांसफर के लिए मैंने जैसे बताया आपको, चार्ज ट्रांसफर के लिए हमें MnO4 नेगेटिव परमैग्नेट, MnO4 डाइनेगेटिव मैग्नेट, CrO4 डाइनेगेटिव क्रोमेट, और डाइक्रोमेट, इनके जो आयंस है यानी दीज आर इन आयनिक फॉर्म। तो ये आयंस कि हम थोड़ा ज्योमेट्री देखेंगे, इनके इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है वो देखेंगे, और चार्ज ट्रांसफर कैसा होता है ये एक बार डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको अगले चैप्टर में कोई दिक्कत ना आए। सो फॉर दिस सेशन दिस इज इनफ कंटेंट टू डिलीवर। आई होप दैट व्हाटएवर वी आर टीचिंग टू यू you are getting very well. You try to read it from your book as well, you try to read from the extra material what you can be fetch up from any source, and try to revise all the reactions, all the parameters, all the factors and all the properties of the transition element. For next session, bye bye.